बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जितने स्टूडेंट बैठे हैं ये यहाँ पे 150 की तैयारी के लिए इधर आए हुए हैं, PMA लॉन्ग कोर्स की। उम्मीद है कि इनकी तैयारी अच्छी होगी। तो आप वैसे इनसे जनरल नोट्स के अलावा पूछ रहे हैं। जो नोट्स हैं वो तो याद कर लें तकरीबन 90% बच्चों ने। तो सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा इनसे मैं। ये रोल नंबर 1 है, ये जो बच्चा है वो शाहजेब। हाथ बुलंद करें बच्चे। ये रोल नंबर 2 है, अरेब कश्मीर से आया, ये आए हुए हैं सिंध से, टन्नू आदम से। और ये रोल नंबर 3 है हमारे स्टूडेंट, ये आए हुए अफजाबाद से। तो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि इनकी तैयारी कैसी है, रोल नंबर 1 की कैसी है, 2 की कैसी है, 3 की कैसी है। सबसे पहले आम जो इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, सिर्फ 1 मिनट टाइम है आपके पास, 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन करवाना है इंग्लिश में। जी शाहजेब। My name is Shahzeb Rajput. My father name is Shabir Ahmed. I have 6 siblings in my family, and my father is a businessman. My elder brother is an officer, and my 5 brothers are doing their own business. Basically, I belongs to Tando Adam, and it is the district of Sangar. So that was my interview. Thank you. डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांगड़। Yes, sir. व्हाट इज सांगड़? Sir, Sangar is a district. यहाँ कह रहे हैं टंडवादम डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांगड़। Yes, sir. वो भी डिस्ट्रिक्ट है और सांगड़ भी डिस्ट्रिक्ट है। नहीं, टंडो आदम सर ये डिस्ट्रिक्ट मतलब सांगड़, टंडो आदम डिस्ट्रिक्ट है सांगड़ का। सांगड़ का? यस सर। सांगड़ क्या है फिर? सॉरी सांगड़ डिस्ट्रिक्ट है टंडो आदम का। तहसील बताओ ना, तहसील होगी टंडवादम। नेक्स्ट अरीब। Assalamu alaikum sir, my name is Arif Tariq and my father name is Tariq Hussain. He is a businessman and I have 4 siblings in my family, 2 brothers and 2 sisters. My elder brother is out of city, he is a businessman, and my other sisters are studying. I come here to because the wish of my father and my also wish is to join Pakistan Army. Thanks. ठीक है, नेक्स्ट। Sir, I am Usnani Jaz, son of Ijaz Ahmed. I have 3 siblings. I have done my matriculation from District Public School, Hafizabad, and then I have done my FSC from Punjab Group of Colleges. ओके, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन हो तो ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया तकरीबन, ठीक है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अक्सर ये होता है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी? शाहजेब। Sir, because this is a respectable profession, and I think that I'm able to lead a group and to defense our motherland. ओके, नेक्स्ट अरीब। Sir, because the army is well disciplined, respectable profession, and I also think that I have the capabilities that the army wants. That's why I joined to Pakistan. Sir, everyone has their own desire. I have desire to join Pak Army because it is a respectable, honorable job, and it gives us so many opportunities. If you are not selected Yes, sir. in Pakistan Army, Yes, sir. then what will be your next decision for your future? I will do my engineering, and then I again try in Okay. the next course. Yes, Areeb. I will try again, sir. So inshallah I will be selected in this profession because I have qualities to become an army officer, and inshallah I will be selected. If you are not selected, suppose you are not selected in first chance, then what will be your next Sir, decision? my second motive is to go abroad to take admission in university. You will not try again? No sir, no sir. Why? Because sir I have very short time, and my age is not like that on that way, because they required minimum 23, and after applying on 150 I will not be able to apply on What's your age? Sir, my age is 20 years 6 months. Who told you minimum 23? Yes sir, I saw it on Google. Minimum 17 years old. If you're 17-year-old, Yes, you sir. can apply for army. Yes sir. Maximum after intermediate, maximum age limit is 22 years. Yes. Yes, sir. If you are 22. if you are studying in secondary class, you can also apply on hope certificate. अगर आप BA करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, यू कैन अप्लाई इन पाकिस्तान आर्मी इन PMA लॉन्ग कोर्स
कब तक? 23 ईयर्स तक। और इसमें भी 22 में भी 3 माह की रिलैक्सेशन है और 23 में भी 3 माह की रिलैक्सेशन आर्मी देती है। लेकिन ये एज लिमिट काउंट होती है PMA ज्वाइनिंग डेट, ये याद रहे। अप्लाई डेट नहीं है बल्कि ज्वाइनिंग डेट। यस सर। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट तक काउंट होती है। अगर जिस तरह भी ये PMA लॉन्ग कोर्स 150 आ रहा है, अप्रैल में आ रहा है, तो ये ज्वाइन करेंगे 13 नवंबर 2022 को। तो 13 नवंबर 2022 तक आपकी एज जो है 22 साल 3 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम एज 17 साल है। 17 साल वाला बच्चा अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, अभी तो आपकी एज कम है। पाकिस्तान के 5 शोरा के नाम बताइए, पाकिस्तान के 5 शायर। अल्लामा इकबाल, हफीज जालंधरी, सर सैयद अहमद खान, एंड द फोर्थ वन इज आप सपोर्ट करें इन्हें। परवीन शाकिर, तो शायर हैं। परवीन शाकिर, ठीक है। फैज़ अहमद फैज़ अहमद फैज़, मोहसिन निशान। मोहसिन। ठीक है। पाकिस्तान का कौमी तराना आता है आपको? किसने लिखा है? ये अल्लामा सॉरी सर, हाफिज़ जलंधरी। बोला सर, हाफिज़ जलंधरी ने लिखी है। तराना सुनूँ आपसे मैं, पाकिस्तान का कौमी तराना? जी सर सुन सुन लें सर। चलें, ये आता ही होगा। अच्छा बच्चे, अभी करना ये है कि जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जिसको आता है वो फ़ौरन पहले जवाब देगा। यस सर। ठीक है, यस सर, और जिसको नहीं आता वो फिर ज़ाहिर है कि वो दूसरे को सुनेगा। तो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी जो है आपको पता है माउंट एवरेस्ट है। यस सर। इसका किस सिलसिला पहाड़ी से मिलता है, इसका ताल्लुक है? सिलसिला कौन सा बनता है? माउंट एवरेस्ट किस पहाड़ी सिलसिले में है? जी, अभी उसने गलत बताया, आप भी गलत बता रहे ये हैं। है नेपाल में, गॉडविन एस्टीन। मैं पहाड़ी सिलसिला पूछ रहा हूँ बेटा, मैं ये नहीं पूछ रहा कहाँ पे है। पहले क्वेश्चन को सुने। माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जो है सिलसिला हिमालय में, हिमालयंस, इसलिए मिट्टी मरी वालों को क्या कहते हैं? हिमालयंस, जो पहाड़ जाते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 29,028 फीट। पाकिस्तान को चाइना से मिलाने वाली शाहराह कौन सी है? एक बच्चे ने आज कहा मुझे, सर मुझे बहुत शौक़ है पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, उसे ये नहीं पता कि इनिशियल क्या होता है और ICB क्या होता है। शौक़ बचपन से है, शौक़ है तो फिर नॉलेज भी इंक्रीज़ करें ना। यस सर। पाकिस्तान को चाइना से मिलाने वाली शाहराह का नाम बताइए। शहर रेशम। शहर रेशम, जो पहले से नाम लिया है कुरक्रम हाईवे, उसको दोनों नाम है। चांद पर कदम रखने वाला पहला शख्स कौन था? दोबारा बताएं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक। मुआहिदा ताशकंद क्या है? सर जी इसको बताएं बच्चे को, शेखुपुर वाला। ताशकंद पैक्ट है जी क्या है? जो अब ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखवाए, इनको ये ऐसे पूछता हूँ देखने के लिए कि इनके कितना नॉलेज है। ये ना समझिए कि इनको पहले लिखवाए हैं, ये क्वेश्चन इनको नहीं लिखवाई हुई है। सर ये 1955 में हुआ था। सर मैं सर 1965 के बाद ये ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। 66 में हुआ है। ठीक है, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था। कुछ मुआहदे हुए थे उनके। किधर हुआ था ये किस जगह हुआ था? दिल्ली में। क्या है मुआहिदा ताशकंद? नोबेल प्राइज़ क्या है? व्हाट इज़ नोबेल प्राइज़? which is given due to their कोई मतलब सर ऐसी एक एक बच्चा बताए, पहले ये बताएगा फिर ये बताएगा फिर ये बताएगा। व्हाट इज़ नोबेल प्राइज़? सर नोबेल प्राइज़ मतलब एक आदमी को तब दिया जाता है जब उसमें कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि
वो उसे शो करता है, जब पूरी मतलब वर्ल्ड के सामने आती है तो उसे नोबेल प्राइज़ मिलता है। जी और ये बताएं। ये सर जो मतलब जैसी खूबियाँ बंदे के अंदर होती हैं, जब वो अपनी खूबियाँ जाहिर करते हैं, जो अपने पूरे वर्ल्ड को जाहिर करते हैं, तो वो फिर लोग उसे जो मतलब खुश होते हैं लोग उससे, और उसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज़ मिलता है सर। Sir, basically Nobel Prize is given to those who has capabilities and who has abilities to do something new. So जैसे recently वो एक जो आए थे USA से बिल गेट्स को भी दिया गया है मेरे ख्याल में नोबेल प्राइज़। सॉरी उसको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया, मतलब उसकी क्वालिटीज़ वगैरह को देखा जाता है कि अगर उसने कोई इन्वेंशन वगैरह नहीं की हो तो इस तरीके से उसे दिया जाता है। नोबल कौन था? पूरा नाम क्या है इसका? हु वाज नोबल? स्वीडन के मशहूर साइंसदान डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल, क्या नाम है? अल्फ्रेड नोबल ने मरते वक्त एक बहुत बड़ी रकम जो है इस वसीयत के साथ छोड़ी थी कि उसकी दौलत से साइंस और दुनियावी अमन के फ़रोग़ का काम लिया जाए। उसकी दौलत से साइंस के मैदान में और दुनिया के अमन के लिए काम लिया जाए। चुनाचे मरहूम की छोड़ी हुई दौलत से जो सूद हासिल होता है, ठीक है, उससे हर साल 5 इनामात ऐसे आला दिमाग साइंसदानों या दानश्वरों को दिए जाते हैं जिन्होंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इल्म अद्वियात, नफ्सियात में कोई मारकतुल आरा खिदमत अंजाम दी होती है, या फिर आला अदब के फ़रोग़ और दुनियावी अमन के क़याम में नेक नाम कमाया होता है, आलमी सतह पर शोहरत हासिल की होती है। इन इनामात में से हर एक इनाम की मालियत तकरीबन 10,000 पाउंड होती है। नोबल हासिल करना इंतहाई बुलंद एजाज़ है। अभी पता कहाँ इसके बिलोंग करता था, कहाँ से? स्वीडन से। CIA के मतलब क्या जानते हैं आप? Sir, it was an agency, crime investigation agency. मैं CIA दूसरी पूछ रहा हूँ बच्चे, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में। Central Intelligence Agency. आप बता दो बेटा। क्या एजेंसी है ये, क्या है? पाकिस्तान की सर एजेंसी है जो मतलब इंटेलिजेंस खुफिया तरीक़ों से, ठीक, इंटेलिजेंस एजेंसी है। खुफिया तरीक़ों से मतलब किसकी एजेंसी है ये? इंटेलिजेंस, अमेरिका की है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। वो जो खुफिया तरीके से मतलब अगर काम कोई इलीगल हो रहा है, कोई मतलब जैसे आप अगर कोई भी इलीगल काम करते हैं या उसे वो खुफिया तरीके से सारे अंजाम देते हैं, और उसे ये एक इदारा है ये Yes, sir. एजेंसी का, और मरकज़ी सुराग रसां तंजीम यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इसे कहा जाता है। ये इदारा दुनिया भर में हुकूमत अमेरिका के लिए सुराग रसानी का काम अंजाम देते हैं। इसकी शाखें दुनिया के तमाम ममालिक में फैली हुई हैं। ये इदारा दुनिया में बड़े और खौफनाक इनकलाब लाने का सबब बन चुका है। आज दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई नाखुशगवार इनकलाबी तब्दीली आती है तो सब लोग इसे CIA की कारस्तानी समझने लगते हैं। यस सर, ठीक है, CIA। और दूसरी जो बच्चे ने बताया क्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान की है। सिंतास मुआहिदा क्या है? सिंतास मुआहिदा, सिंटोस मुआहिदा। जी सिंतास पढ़ते हैं फिजिक्स, सॉरी ये PS में पढ़ा ना आपने सिंतास मुआहिदे के बारे में? जी छोड़ो कॉल को, भी इंटरव्यू हो रहा है आपका। जी व्हाट इज सिंतास मुआहिदा? व्हाट इज सिंतास एग्रीमेंट? नहीं पता? नहीं सर, पढ़ा नहीं है PS में, पाकिस्तान स्टडी में पढ़ा ना, FA में? ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तय पाने वाला एक ऐसा समझौता है जिसके नतीजे में दोनों ममालिक में एक मुआहिदा हुआ था। इस मुआहिदा पर कराची में मोरखा 19 सितंबर 1960 को सदर पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने दस्तखत किए थे।
इस मुआहदे की रूह से, यस सर। ठीक है, क्या सर वाटर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ क्या है बताएं ना, इस मुआहदे की रूह से क्या हुआ? यस सर, 1960 में, मेरे ख्याल में 1948 के अंदर जब वो भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था, उस दरिया से आता है 1948 के अंदर। क्या मुआहदा क्या हुआ था? सर मुआहदा ये हुआ था कि फिर डिफरेंट, यानी कि वो कह सकते हैं कि हाफ एंड हाफ, मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूट ठीक कर दिया है, था। सही। 3 दरिया उनके, तीन 3 दरिया हमारे, ठीक है। उनका और इस पानी निकल जाएगा। मुआहदा पर नज़रसानी के नतीजे में जनवरी 1961 में इस मुआहदे में तरमीम हुई, तनसीख हुई, ठीक है। बार इसका नफाज अप्रैल 1960 में हुआ। मुआहदे की रूह से इस ताज के 3 मगरबी दरिया कौन कौन से? चिनाब, झेलम, सिंध, Yes, sir. मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को दिए गए। और 3 मशरकी दरिया यानी कि सतलुज, ब्यास, रावी पर भारत का हक पूरी तरह तस्लीम किया गया कि इनके पानी का हक किसको है? इंडिया के। सतलुज, ब्यास, रावी और 3 जो मगरबी दरिया हैं, चिनाब, झेलम और सिंध, ये पाकिस्तान को दिए गए, ठीक है। Yes, sir. साथ ये तय पाया कि मुआहदे की तारीख से लेकर 1970 तक भारत जो कश्मीर में इनके दानों पर काबिज़ है, पाकिस्तान को एक ख़ास मकदार में पानी फराहम करता रहेगा। Yes, sir. ये था सिंताज मुआहदा। मुहासरा किसे कहते हैं बच्चे? मुहासरा, सर गिराव कर लेना। गिराव करना, ठीक है। चीज़ का गिराव कर लेना। दुश्मन की शहर को चारों तरफ से रसद बंद कर देने को मुहासरा कहते हैं। चीज़ें बंद कर दें, खाने पीने की चीज़ें बंद कर दें, सप्लाई बंद करें, पानी बंद कर दें, Yes, sir. उसको क्या कर दिया जाए? घात मुहासरा। जैसे कारगिल में हमारी फ़ौज गई थी, Yes, sir. ठीक है, मुहासरा कर लिया था तकरीबन। सर एम्बुश पे लगाकर, मतलब एम्बुश लगाकर उनको। रेजिमेंट किसे कहते हैं? रेजिमेंट ये एक यूनिट यूनिट को कहते हैं उर्दू में। किसी फौज की मुस्तकिल इकाई Yes, sir. या यूनिट को रेजिमेंट कहते हैं। ये देखो, ये आप देख सकते हैं ना, यूएनओ के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? यूएनओ के सर, यूएनओ मकासद क्या हैं अक़वाम मुत्तहिदा के? to bring peace in the countries and to bring faith and discipline. unity in the countries and to support economically and developmentally to the countries. Faith, discipline. Yes. जी, Unity, faith and discipline. And sir, यूनिटी, फेयर और डिसिप्लिन, तो ये पाकिस्तान आर्मी का मोटो है ना। yes, नहीं, उनका जो मोटो है यूएनओ का सर, इट्स योर वर्ल्ड। इट्स योर वर्ड। It's your Yes. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इनका ये सलामती। क्या है? सलामती। सलामती, अमन और सलामती, जो बताया इस बच्चे ने कि दुनिया में अमन और अमान की फ़िज़ा कायम की जाए Yes, sir. और अक़वाम आलम के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात का फ़रोग़, सपोर्ट किया जाए। ठीक है, और मुख्तलिफ़ ममालिक के मसाइल और झगड़ों का ख़ात्मा किया जाए, ठीक है। तो ये मेन उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। Yes, sir. सलामती को बरकरार रखना और अमन और अमान की फ़िज़ाएँ कायम करना, दोस्ताना ताल्लुकात का फ़रोग़ और मसलों और झगड़ों का ख़ात्मा करना जो दुनिया में झगड़े चलते हैं। इसके इदारे कौन कौन से हैं? मेन इदारे अक़वाम मुत्तहिदा के, यूएनओ के। यूएनओ के, कुछ तो याद होंगे ना बच्चे। yes, sir. नंबर 1 सलामती कौंसिल, नंबर 2 जनरल असम्बली, नंबर 3 मुआशी और समाजी कौंसिल, ट्रस्टीशिप कौंसिल और बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ, Yes, sir. International Court of Justice. Court of Yes, Justice. yes, sir. और सेक्रेटेरिएट। वारसक डैम किधर है बच्चे? Sir, it is on Kabul River. किधर है? What's up there? It is in Balochistan. शाबाश है। कौन सा डैम सर? वारसक डैम पेशावर में बच्चे। किधर? अफगानिस्तान जा रहे हो, ये बलूचिस्तान बता रहे हैं। पेशावर 16 मील दूर है वारसक के मकान। वारसक का काला इतना मशहूर है। दरिया आता है वो दरिया काबल है। दरिया काबल वहाँ से जो आ रहा है वो अटक के मकाम पे दरिया सिंध में मिल जाता है। ये पूछते हैं कौन सा मकाम है? वो अटक का मकाम है। और दरिया सिंध कहाँ से आ रहा है? एक बच्चे से पूछा कहाँ से, कहता है सिंध से आ रहे हैं। सिंध से आ रहा है और सिंध में जा रहे हैं। चाइना से आ रहा है। किधर से आ रहा है? तिब्बत का मकाम है, वहाँ से आते हैं। एंड होता है सर अरबियन सी में। अरबियन सी।
और टोटल कितने दरिया हैं, मैंने आपको कहा था कल, 25. टोटल कितने दरिया हैं पाकिस्तान के? 25 हैं। 25. Yes, sir. कन्फर्म है ये? Yes, sir. दुनिया का सबसे बड़ा, आपसे पूछ रहा हूँ अरीब से, दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा दरिया कौन सा है? सबसे सबसे बड़ा दरिया कौन सा है और लंबा दरिया कौन सा है? आप बता दो। दुनिया की दुनिया का दुनिया वर्ड, दुनिया पूछा, दुनिया का। Mad Valley. Nile in Amazon, Brazil. गुड। नंबर 1 नाइल। नाइल क्या है? लंबाई में लंबा है। Yes. और अमेज़न जो है ये कैपेसिटी ज़्यादा है इसकी। Yes. लार्जेस्ट आ जाता है कौन सा जिसमें ज़्यादा पानी है ज़ख़ीरा, वो कौन सा? अमेज़न रिवर। Amazon. और लंबाई के लिहाज से जो नाइल. नाइल। ये बच्चे मिक्स हो जाते हैं अक्सर। उन्नीस सौ पैंसठ की जंग में निशान हैदर किसको मिला था? सही बता रहे Pilot हैं। officer Rashid. मेजर अजीज भट्टी। मेजर अजीज। गुड, सही है। आप कौन सी गेम खेलते हैं? मैं सर क्रिकेट. अच्छा, क्रिकेट के बारे, चलो आप क्रिकेट के बारे में बताते हैं। इसने क्रिकेट का नाम ले तो हम क्रिकेट के बारे में पूछेंगे। क्रिकेट की जो पिच है Yes, sir. उसकी लंबाई कितने गज है? 22 फुट. 22 फुट या 22 गज? सर हम लोग तो 22 फुट के हिसाब से, लेकिन एक प्रॉपर वही है ऑफिशियल भी. यार्ड किसे कहते हैं? यस सर. गज को गज, 22 गज है। 22 को फुट तो थोड़ा सा होता है, इतनी होती है। जो विकेट है इसकी क्रिकेट की, ठीक है, विकेट पता है ना आपको? यस सर. विकेट की जो ज़मीन से ग्राउंड से ऊंचाई है कितनी होती है? जमीन से हाइट कितनी है ऑफ स्टम्प्स आउट ऑफ ग्राउंड? विकेट के ऊपर जो दो पड़े होते हैं, बेल्स। बेल्स की लंबाई. जी, स्टम्प्स। अच्छा, स्टम्प्स की लंबाई. स्टम्प्स की ज़मीन से ऊंचाई पूछी गई है। हाइट कितनी हाइट पे पड़े होते हैं वो? अच्छा. ये पूछेंगे आपसे जब क्रिकेट कहोगे तो क्रिकेट के बारे में एक चीज़ का पता होगा। 28 इंच हाइट कितनी है इनकी? 28 28। और टोटल कवर एरिया कितना है इसका, यही पता हो कितने? 9 इंच। जो बुलाई बॉल है इसका, क्रिकेट का बॉल Yes, है, sir. इसकी गोलाई कितनी होती है? बॉल की गोलाई, वेट भी बताएं। सर वेट होता है 5.6 ऑन्स. और गोलाई आई एम नॉट श्योर सर अबाउट. तकरीबन आपने सही बताया, वेट तकरीबन सही बताया। और जो इसकी गोलाई है तकरीबन 9 इंच है, 9 इंचेस। बैट जो है बल्ला जिसे कहते हैं वो, इसकी जो वेट है वो कितनी है मैक्सिमम? विड्थ या जी, वेट 5 to 6 इंचेस. लेंथ भी बता दो और वेट भी बता दें। बैट की लंबाई भी बता दें और चौड़ाई भी बता दें। ये बाद में देखना वीडियो को, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ताकि दोबारा वो याद रहे। मैक्सिमम लेंथ इसकी 38 इंचेस। कितने इंच का होता है बैट? 38 और इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो है 4/114।
4.5 इंच तकरीबन। 4.5. जी। बॉलिंग क्रीज कितनी होती है? Bowling crease. लेंथ बता दें। Sorry sir. चंगा तुम होते खिलाड़ी हैं बच्चे। आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? अरीब क्रिकेट। क्रिकेट ही है। अभी ये क्रिकेट जो बताया उसूल ये याद Yes, sir, वो रखना। information. अभी कौन है वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेट का? कौन सा अभी जो अभी वर्ल्ड चैंपियन कौन है इस टाइम दुनिया का चैंपियन जो है? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है। पहले कौन था ऑस्ट्रेलिया से? आपका कौन सा गेम है? यही है, इसके बारे में information ताकि सर दूसरा ना पूछें हैं? नहीं नहीं सर, information मतलब अगर ठीक रहते हैं ना, मतलब इतना पाकिस्तान सारा कौमी information खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी। हॉकी के बारे में वैसे ही पता हो कि गोल पोस्ट कितनी लंबाई है, चौड़ाई कितनी है, उसकी बॉल कितना होता है, स्टिक जो है इसकी हॉकी की उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, Yes, sir. ठीक है, गेम का। तो ये आपसे इनिशियल इंटरव्यू में पूछा जा सकते हैं। बहादुर शाह जफ़र को पढ़ा ना आपने? गज़ल पढ़ी होगी आपने हर कोर्स में तकरीबन, चाहे आप पिंडी बोर्ड में पढ़ते हैं या बलूचिस्तान बोर्ड। बहादुर शाह जफ़र की गज़ल तो लाजमी होती है। कौन था ये बहादुर शाह जफ़र? So he was a ruler. पूरा बताओ ना। So I don't know the exactly his. अभी बच्चे इंटरव्यू सुनना है कि मैं कैसे दे रहा हूँ, Yes, sir. अपने ऊपर खुद ही गुस्सा आएगा। ठीक है, जैसे आके ऐसे करते हो ना, खुद ही गुस्सा आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। उधर गलती नहीं करनी है, सीधा स्ट्रेट देखना है सब, और तुक्के नहीं लगाने। टू द पॉइंट सही आंसर के जवाब ऐसे ज़बरदस्त दें, अगला सेलेक्ट करने वाला कहे यार इससे बेहतर तो है ही कोई नहीं, सेलेक्ट करना है हमने। मुगलिया सल्तनत का बादशाह था लास्ट, और बानी कौन है मुगलिया सल्तनत का? ज़ैदुल बाबर था। और इसका नंबर क्या था बादशाह में? 20th। बहादुर शाह जफर। बादशाह में इसका 20वां नंबर था। मुगलिया बात कर रहा हूँ मैं। और इसके फादर का नाम भी आना चाहिए, कौन था? अकबर II था इसका फादर। कब्र इसकी किधर है? मून बर्मा में है। शेर भी सुन सकते हैं। ये तो गज़ल पढ़ते हैं, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 रोज़, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। अभी मैं आपसे कुछ कैपिटल्स पूछता हूँ, ये लाजमी ही आते हैं बच्चे हर टेस्ट में। जो इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स हैं ना वो पूछ लगा मैं आपसे, जो लाजमी आते हैं, आ सकते हैं। सबसे पहले हमें बताएगा हमारा जो शहजादा है, तो ये थे जनाब कौन? बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, अभी ये तीनों बच्चे बैठे हैं, मैं दोबारा इनसे पूछूंगा कैपिटल्स, पॉपुलर कैपिटल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जो कि फ्रिक्वेंटली आप पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी और एकेडमिक पोर्शन में भी आते हैं। तो अभी जिसको आता है हाथ खड़ा करेगा, Yes sir. जिसको आता है वो क्या करेगा? हाथ खड़ा करेगा। पहला कैपिटल मैं पूछने लगा हूँ, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल। यार हाथ खड़ा करो ना, ऐसे नहीं जी। Kabul sir. काबुल। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? कहते हैं किधर फंस गए हैं सर के पास आके। Canberra. कैनबरा। हाथ खड़ा करना पुत्र। अच्छा. बांग्लादेश। Dhaka. ढाका। हाथ खड़ा करो, बाद में पहले ये बोलता है फिर हाथ खड़ा करते हैं। ढाका। बेल्जियम। बेल्जियम। गलत नहीं बताना, Yes sir. Lima. हमारा टाइम ज़ाया ना करे सुनने वाला। लीमा किधर आ गया? बेल्जियम। ब्रसल्स। बोस्निया हर्जेगोविना। बोस्निया हर्जेगोविना। इतने मशहूर कैपिटल्स हैं यार, इतने अच्छे मुल्क हैं, ज़रा आप सर्च तो करो। देखो कैसे मैंने नोट्स बनाए, ये देख लो, ये अपने हाथ के नोट्स होते हैं। पता चले मोहब्बत कर रहे हैं यार, मेहनत कर रहे हैं। तारीफ अपने नहीं करता, लेकिन सर दिखाने के लिए कि मेहनत होती है ऐसे। यस सर। इतने मार्कर शार्कर यूज़ करके लाने लगा के लिखना, एक नहीं है पूरा बक्सा भरा पड़े जी। हाँ जी,
शहजादे हाँ Yes, sir. हंस रहे हो, बताओ। Yes, sir. सर किसका कैपिटल पूछा था? बोस्निया हर्जेगोविना, इसका कैपिटल कैपिटल्स पूछ रहा हूँ ना ज़ाहिर में। और तो कुछ नहीं पूछ रहा मैं। सराजीवो, सराजीवो, कनाडा। ये तो हालत कैपिटल नहीं है, मैं दिल करता है यार ये मोबाइल उठा के फिर मैं मारूँ हैं। कैपिटल सारे आने चाहिए, 2-6 मुल्क हैं टोटल दुनिया के। 2-6 मुल्क कितने कैपिटल्स हैं? 2-6 कैपिटल्स याद होने चाहिए। फिंगर टिप 2 नंबर हैं इसके, 2 नंबर नहीं है बल्कि 4 नंबर है, 2 तो आते हैं लाजमी। एक के 2 नंबर होते हैं, समझ आइए बात Yes. जी। कनाडा का कैपिटल Ottawa. ओटावा। गुड, आपने बताना है जो स्वाद से आ रहा है बच्चा। Sorry, sir. चाइना का बता दो बच्चे आप, कैपिटल। किधर से आए हो आप? स्वाद। कैपिटल्स तो आने चाहिए ना। चाइना, बीजिंग। पुराना कैपिटल क्या था? पीकिंग, चेंज हो गया। कोलंबिया, अल्फा से शुरू किया है, अल्फा ब्रावो चार्ली नीचे आ रहे हैं। कोलंबिया का कैपिटल सारे बड़े याद कर जाओगे नहीं के बाद, Yes, sir. सारे आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए चीज़ें। बोगोटा, कांगो का क्या है? कैपिटल ऑफ कांगो, किनशासा। इतने प्यारे मुल्क हैं, नाम इनके कैपिटल्स। हाँ रट्टे लगाए होते थे ऐसे ही, सारे याद थे। ये तो मैंने कुछ वीडियो बनाई है मैंने कैपिटल्स पे। इजिप्ट, ये तो बता दो यार इजिप्ट का। कायरो, गुड, उस बच्चे को आते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं इजिप्ट को? मिस्र, कायरा। फ्रांस का कैपिटल बताएं। पेरिस, खुशबुओं का शहर। चलो जी आप बता गए, ये बच्चा ये सांगड़ वाला। इंडिया का कैपिटल क्या है? इंडिया का सर दिल्ली। ठीक है, आसान है ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, जर्मनी का क्या है? जर्मनी लीमा। बर्लिन, गुड। अभी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं यूनिवर्सिटी में होगी। यूनिवर्सिटी तो आपको याद है, लगता है मेहनत की थी आपने। एवरेज थे सर। कुछ तो याद है। LLB का स्टूडेंट है सर। जनरल नॉलेज जरूरी है। नॉलेज, जनरल नॉलेज ज़रूरी है ना, ऐसा तो नहीं है। ईरान का बता दे बच्चा, तुम ईरान का। ईरान का तो आएगा ना, पड़ोसी मुल्कों को तो आना चाहिए। आप बता दो। सर तेहरान। तेहरान, इंडोनेशिया। अभी सर कैपिटल्स नहीं है कि सिर्फ कैपिटल तो बिल्कुल इब्तदाई है ना। आपको इंडोनेशिया के बारे में सारा पता होना चाहिए। इंडोनेशिया क्या मुल्क है, मुसलमानों का है, काफरों का है, किसका है, कितना रकबा है इसकी, कितनी आबादी है, अभी इसका क्या, हुक्मरान का नाम क्या है, कैपिटल क्या है, ज़राए मईशत क्या है, मशहूर क्यों है, क्या वजह है। और इस हवाले से हम पूरी दुनिया के मुल्कों की मैंने हिस्ट्री लिखी हुई है, पूरे दुनिया के मुल्कों की। नहीं है तो लो, शौक की बात है ना ये। Yes, sir. इराक का बताएं। इंडोनेशिया के जकार्ता, इराक का क्या है? बगदाद। इसराइल जी। इटली, अंकारा। इटली, रोम। उस बच्चे को सारा आता है। इस तरह के स्टूडेंट चाहिए यार, जैसे कोई आता भी हो। फिर मैं लफ्ज़ सख्त कहता हूँ, फिर वो कहते हैं यार आप बच्चों को डांटो। आप ISB की तैयारी करो। अच्छा, एज कितनी है आपकी? मेरी 21। 21 है, अप्लाई करो। अच्छा, अभी कर सकते हो आप। मैं तो कहता छठा सेमेस्टर चला, ये डिग्री पूरी करके नहीं, अप्लाई करो, 22 साल तक कर सकते हैं ना अच्छा, आप, लास्ट चांस है। बल्कि आपने तो BA किए हुआ है ना, 23 साल तक अप्लाई कर सकते हो। इंशाल्लाह। LLB डिग्री जो होती है बैचलर की है या मास्टर के बराबर है? बैचलर। बैचलर पे आप कर सकते हैं 23 साल तक अप्लाई करें। मेरी डिग्री पूरी हो जानी है तो छठे अप्लाई इस तरह से देखें, वो आएंगे ना बच्चे शाइनिंग स्टार, तो लोग लेते भी हैं। सर अब ये नहीं कि बस अल्लाह अल्लाह करे और दुआएं करते हैं सेलेक्ट हो जाएं, आता शायद कुछ ना हो, फिर किस्मत करवाने के हमने कुछ किस्मत में नहीं था, किस्मत खुद बनानी है हमने। जॉर्डन का क्या कैपिटल है? जॉर्डन,
जॉर्डन, अमान, एक ओमान है एक अमान है। अमान क्या है कि कैपिटल है, ओमान मुल्क है। ओमान का क्या है? इतना मशहूर कैपिटल है। क्यों सर? पाकिस्तानी उम्र करने जाते हैं, पहले उधर स्टे करते हैं, फिर आगे जाते हैं दूसरे पे। ओमान एयरलाइन है, उस पर सफ़र किया है मैंने। मस्कत मशहूर है ये तो। कीनिया का कैपिटल क्या है? लीबिया अलग मुल्क है बचे। कीनिया के तू मुल्क बता देते आगे से, मैं कैपिटल पूछता हूँ, आप दूसरा कंट्री बता देते हैं। नैरोबी, कुवैत, अमीर तरीन मुल्क है कुवैत, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। पूरा जो कुवैत है ना, ये पूरा एसी है, एयर कंडीशन है। सबसे कीमती करेंसी जो है वो कुवैत की है। कुवैत का कैपिटल, कुवैत का कुवैत सिटी है। कुवैत का कुवैत, माल्टा का क्या है? बोलो ना, यूरोप। नहीं सर। माल्टा, वेलेटा में याद करते हैं, माल्टा, वेलेटा, वेलेटा, वेलेटा याद करो। 2 नंबर 4 नंबर लेने हैं आपने इसमें। मैक्सिको, मैक्सिको, मेक्सिको का तो शायद मेक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी। मोरक्को, मराकश कहते हैं उर्दू में। इसका भी काफी मशहूर है। ये सबक है, देखें याद कराते हैं बच्चों की तरह इनको। एक एक लफ्ज़ तकरीरें करना हमें आती हैं, मोटिवेशन स्पीचेस, उसका फ़ायदा नहीं है। मोटिवेटेड हैं तो बच्चे इधर आते हैं ना। स्पीचेस हम भी कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, बच्चों को नुकसान है। ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो बच्चे मुतासर होते हैं मोटिवेशन स्पीकर से, वो सिर्फ स्पीचेस सुनते रहेंगे, का आएगा नहीं। आपने लिखना है, कापियाँ बनानी है, ये कापी देख लें, ये कापी देख लें, इस तरह कापियाँ मेंटेन करनी है, नोट्स बनाने हैं। जीके के अलग से बनाएं, मैथ्स के अलग से बनाएं, इस्लामियात के अलग से बनाएं, पाकिस्तान अफेयर्स के अलग से बनाएं, और इंग्लिश की अलग से बनाएं। 5 आती हैं। वर्बल नॉन वर्बल के अलग से बनाएं। बच्चे मेहनत करें। बच्चा आया था स्वाद से, कबीर नाम था उसका। कबीर ने बड़ी मेहनत की थी। उसने, मैंने कहा 5 बच्चे रजिस्टर बनाने हैं, उसने मेरे नोट्स के अलावा 5 रजिस्टर इतने बड़े बड़े बनाए, सिलेक्ट हो गया था। एक बच्चा मूसा सेलेक्ट हुआ था। मूसा पीर बाबा का रिश्तेदार था, जो पीर बाबा में स्वाद में बुनियार के सैयद थे वो। उसके वाले साहब इधर आए थे माशाल्लाह। उसके एक भाई कर्नल हैं इधर। हमने सेवर वालों ने कराया, ये कराते हैं हर 6 महीने बाद रनिंग कराते हैं, लियाकत बाग से दौड़ाते हैं और आगे सेवर तक। तो 25,000 रुपये इनाम देते हैं ये। उस टाइम 25,000 था, तो पहली पोजीशन लगे। 25 पहले है, फिर 20,000, फिर 15,000। तो मूसा ने फर्स्ट पोजीशन ली थी। मूसा ने कौन सी पोजीशन ली थी? फर्स्ट। और पूरा पिंड इस्लामाबाद आता है यहाँ पे, कम से कम भी कोई 10-12 हज़ार बच्चे थे। तो मुझे खुशी हुई, मैंने कहा यार मूसा ने पोजीशन ली। और मूसा बालगान का नहीं होता सर बालगान का, कैसे एजेड लोग सब आ सकते हैं? नहीं, वो उन्होंने कैटेगराइज नहीं है, जो मर्जी आ जाए, नहीं, कैटेगराइज नहीं है। देखिए एक दौड़ाते वो उस तरह नहीं है आर्मी वाले साहब, इकट्ठे ही दौड़ा देते हैं ये। नहीं, लेकिन उसमें जो पोजीशन देते हैं वो नहीं होता कि कोई एक बंदा इतनी एज के ओवर 40, अंडर 40, ओवर 30। नहीं, इस तरह नहीं है। वैसे मैं शायद बालगान को हो भी नहीं, वो बच्चे यंग ही थे। को मैं वीडियो बना रहा था खड़े होके, और वो कुछ जो छलांगे मार रहे थे ना बच्चे हमारे, कि हम तो बहुत ही टॉप कर लेंगे, वो मैं देखते रह गए किधर चले गए, दूर दराज तक नज़र नहीं आ रहे थे। वो थक गए होंगे रास्ते में बेचारे कहीं। तो ज़्यादा आपने गरजना नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल बरसना है। बरसना। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन दिखा दी मूसा ने, मुझे पता था वो सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया था, बच्चा मेहनती था और फिजिकल में इतना अच्छा था कि हमारा पीटी जो था ना, पीटीआई पीटी इंस्ट्रक्टर, वो भी तारीफ़ करता कि सर बड़ा अच्छा लड़के, वक्त का पाबंद, सारी चीज़ें उसके अंदर थी। अल्लाह ताला मदद करते हैं। और वो भी लेटेस्ट आपका हुआ सर, क्या नाम है उसका? शाहजेब, शाहजेब। उसने मेहनत की, आपके सामने था बच्चा। तो इस चीज़ से नहीं घबराना कि सर बेइज्जती करते हैं, बेइज्जती नहीं है बच्चे। ये देखें इखलास है आपके साथ। अगर मैं कोई गुस्सा करता हूँ तो आपके साथ मुखलिस हूँ, इखलास है ना। टीचर जो सख्त नज़र आता है ना, अभी बज़ाहिर
शायद आप अच्छा ना समझते होंगे यार सख्ती कर रहे हैं। कल जब सेलेक्ट होकर चले जाओगे फिर दुआ देंगे कि मेहनत कराई थी, क्यों कंपटीशन है, जो मर्जी कर लें, कंपटीशन गुजरने हैं आपने। 1 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे तकरीबन, कम से कम 600 सीटें हैं। सीटें कितनी हैं PMA लॉन्ग कोर्स? 600 भी नहीं होती पूरी, 552 570 इस तरह होती है। तो उधर सेलेक्ट वही होता है जिसने मेहनत की होती है। सिर्फ गुफ्तार का गाजी नहीं बनना, बल्कि प्रैक्टिकल दिखा देना कि मैंने ये बन गया हूँ मैं। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए ना, ये सिंपल चीज़ें मैं पूछता हूँ। ये अक़वाम मुत्तहिदा क्या है, ठीक है, मुआहदा तशकंद क्या है, मुआहदा शिमला क्या है, सिंतास मुआहदा क्या है, CIA क्या है, सिंपल चीज़ें हैं। और ये अगर चीज़ें नहीं आएंगी डिस्कशन में भी आप पीछे रह जाओगे, नॉलेज कम होगा, कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाओगे। नॉलेज ठीक ठाक नॉलेज होगा तो आपका कॉन्फिडेंस होगा। किताबें पढ़नी है आपने। तो मोरक्को का क्या है? रबात। नेपाल का क्या है? काठमांडू। ओमान मस्कत। पाकिस्तान इस्लामाबाद। पहला कैपिटल कराची। कतर का क्या है? कतर। ये है मैं बता रहा हूँ, जो वैसे तो बहुत ज़्यादा 206 मुल्क हैं, लेकिन जो बार बार आते हैं कैपिटल वो पूछता हूँ मैं। कतर एयरलाइन है, कतरी शहजादा सारा पता है आपको। कतर का पता हो कैपिटल? दोहा। रशिया का क्या है? रशिया भी गया है इमरान खान, रशिया गया था। मॉस्को। सऊदी अरब का बता दे बच्चे शाहजेब साहब, रियाज। और बताओ सिंपल सा। स्पेन का बताएं। स्पेन आपको तो आता होगा। मैड्रिड। श्रीलंका। श्रीलंका क्या है? खरतूम। कल भी मैंने बताया था। श्रीलंका का खरतूम? खरतूम। कोलंबो है सर। नहीं, श्रीलंका का हाँ कोलंबो, सॉरी कोलंबो है, सही कह रहा हूँ। श्रीलंका का। और खरतूम है सूडान का। सूडान। सूडान खरतूम। बार बार याद करें। श्रीलंका। कोलंबो। हमारे बच्चे जाते हैं श्रीलंका, मिलिट्री कॉलेज वाले, हाँ, कोलंबो। और मरी के भी जाते हैं, जेलम के भी जाते हैं, सुई के भी जाते हैं। सुई के जाते हैं सर, तीनों जाते हैं, और कॉलेजेस के भी जाते हैं। तो हर साल जाते हैं। आप गए थे बच्चों के साथ? एक दफ़ा मुझे चांस दिया था उन्होंने, गया नहीं था, फिर मैंने सॉरी किया था, आमिर चला गया था, आमिर रऊफ़। मेरा भी बड़ी दफा नाम आया, मैं भी बस गया। तंजानिया का क्या कैपिटल है? तंजानिया। दारुस्सलाम। आप कहते भी है ना तंजानिया दारुस्सलाम। तुर्की का बता दो, तेरा भाई तुर्की में है। भाई साहब सुन लें इसका। हैं? अंकारा। यूनाइटेड अरब इमरात्स, UAE। ये हालत है, देख लें। ये तो आसान है। ये तो सबको आना चाहिए। दुबई। दुबई किधर आ गए? सऊदीया। शाबाश है। इसको तो ज़्यादा लोग दुबई से UAE का कैपिटल सऊदीया है। बच्चे सऊदीया तो खुद कंट्री वो तो कंट्री है बच्चे। अबू धाबी। अबू धाबी सर। वो जो वीडियो बना रहे होते हैं, वो इस तरह के सवाल पूछते हैं, वो उतना मजे से जवाब देते हैं। वो बच्चे पर रह जाता ना इंटरव्यू में, कहते हैं ज़्यादा कर दिया हमारे अकाउंट ने। उधर बताते हैं क्या कैपिटल UAE का सऊदी है, अगला पर शाबाश देगा कि निकलो गेट आउट हो जाए यार। अभी कैपिटल याद करने हैं आपने ऐसे सारे में, ये हालत ना हो जो भी हालत सुनाइए। कुछ 2-4 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैपिटल बताएं बच्चे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शाहजेब बताओ। बता यार, आप बताओ दो। वाशिंगटन DC। उज़्बेकिस्तान, ताशकंद। मैं मुल्क पूछता हूँ फिर आगे से मुल्क पूछता है कैपिटल। जिम्बाब्वे का बताओ। हरारे। बच्चे ये कोई हंसने की बात नहीं है, कैपिटल्स आने चाहिए, नॉलेज इंक्रीज करो। अच्छा नहीं होगा तो मुझे भी गुस्सा आया कि ये बच्चे को क्यों नहीं आता। अप्लाई नहीं कराऊंगा मैं। अच्छा जब तक आप उसके एलिजिबल नहीं है, अप्लाई करने के काबिल नहीं है, तो अप्लाई नहीं करने है। अभी जिस तरह पोजीशन है ना, अभी पोजीशन नहीं है काबिलियत की, सिलेक्शन की, सीधी सी बात है। तभी देखें अप्रैल में
अनाउंस होगा PMA 150 PMA लॉन्ग कोर्स अप्रैल के तकरीबन पहले हफ्ते में या मैक्सिमम दूसरे हफ्ते में। फिर पूरा महीना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप भी अप्लाई करो, कोई पता नहीं चलता। आप इसके साथ आओ, शायद आप हो जाओ, किस्मत का कोई पता नहीं है। ऐसा ही है ना। मुझे जिस दोस्त ने कहा था अप्लाई करते हैं, तो वो खुद नहीं हुआ, मैं हो गया सिलेक्ट। मुझे तो पता भी नहीं था। उसने कहा अप्लाई दोनों करते हैं। तो मेरी तैयारी थी ना, ये सारी चीज़ें मैंने तैयार की हुई थी ऑलरेडी, पहले से तैयार होना पड़ता है। और फर्स्ट आया था मैं, 50 में से 50 नंबर लिए थे। 10 मिनट मैंने टेस्ट किया हुआ था अकेडमिक कोर्स में। कैसे किया था? मेहनत की थी। तो आप लोग मेरे स्टूडेंट तो मेहनत करो। ये मत सोचो कि सर गुस्सा करते हैं। गुस्सा करता वो बंदा है जो मुखलिस होता है आपके साथ। कल सिलेक्ट होना है आपने, आगे ज़िंदगी बनानी है। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। वो बच्चा LLB कर रहने से पता नहीं, टफ है कि नहीं। बाहर हॉस्टल में रहना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, जलील होना पड़ता है। और ये तो बड़ा शॉर्टकट है आर्मी में। इंटर के बाद आप आर्मी में चले जाते हो, बिल्कुल शॉर्टकट है। कमीशन अफसर बन जाते हैं और लोग आपको सलूट करते हैं। एक ग्रेस है, एक रिस्पेक्ट है। पैसे के लिए बंदा नहीं जाता आर्मी में, एक जुनून के तहत जाता है। आर्मी में बंदा जाता है एक इश्क के तहत जाता है, जैसे वाकई इस मट्टी से प्यार है। वो बार बार अप्लाई करेगा, एक दफ़ा रह गया फिर अप्लाई करेगा। ये नहीं कि एक दफ़ा नहीं हो मैं अप्लाई नहीं करूँगा। जो आशिक है ना, मट्टी का आशिक है, पाकिस्तान का आशिक है, उस वक्त तक अप्लाई करता रहेगा पाकिस्तान आर्मी के लिए जब तक उसकी सांस में सांस है और जब तक उसे चांस मिल रहे हैं। मुराल डाउन नहीं करेगा। बिल्कुल कश्ती जल जाएगी, फिर वो सोचेगा नेक्स्ट मैंने खिदमत कैसे करनी है पाकिस्तान की। तो इसमें वायद ये शोबा है पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स, जिसमें जान का नजराना पेश करता है बंदा। और ये कितना बड़ा एजाज़ है कि अपनी ज़िंदगी जो सबसे प्यारी होती है इंसान को, नेमत अल्लाह ने दी, उस प्यारी ज़िंदगी को कुर्बान सही मकसद पे कर दें, वतन पे निछावर कर दें। इसलिए हम जाते हैं आर्मी में, इसलिए अप्लाई कर रहे होते हैं। पैसे के लिए थोड़ी कर रहे होते हैं। खाकी वर्दी पहनने के लिए कर रहे होते हैं कि खाकी मट्टी से मिलती वर्दी पहनूंगा मैं और इस मट्टी की हिफाजत करूंगा। और मुआज पे जाएंगे, वॉलंटियर जाएंगे। वर्दी पहन के वॉलंटियर ना करना ये अजीब सी बात है। यूनिफॉर्म पहन के वॉलंटियर करना है। मुझे बॉर्डर पे पहुँचाएँ, मैं बॉर्डर पे लड़ना चाहता हूँ, मैं आगे जाना चाहता हूँ। मैं तो हर टाइम वॉलंटियर हूँ। हर वीडियो में तकरीबन मैंने बताया हुआ है। अभी हमें आर्मी आर्डर देगी, मुल्क आर्डर देगा, आगे हम जाएंगे, लड़ेंगे मुल्क के लिए। पहले भी वॉलंटियर भी किया, रिटर्न भी किया। ज़ाहिर एक जज्बा है तो वॉलंटियर किया था ना। और हर टाइम वॉलंटियर है, यानी कि अभी नहीं है, अभी भी वॉलंटियर बैठे हैं। क्योंकि जिसको सही इश्क होता है वतन से, तो वो जान की परवाह नहीं कर, खुश होता है कि यार इस मुल्क के लिए, किसी सही मकसद के लिए हमारी जान कुर्बान हो जाए। तो इधर जुनूनी बंदे आते हैं मेरे पास, तो सही आशिक हैं, जुनूनी है वतन के लिए। जुनूनी होगा तो बनाएगा, नोट्स बनाएगा ना, याद करे, रट्टे लगाएगा, जैसे भी जाएगा फर्स्ट आएगा टेस्ट में। 15,000 या 20,000 बच्चा भी होगा, रनिंग में फर्स्ट आएगा। कोई सुकून ही नहीं आएगा रनिंग नहीं जब तक नहीं करता। चर्बी शर्बी नहीं होगी बॉडी पे, बिल्कुल फिट होगा माशाल्लाह। इसलिए नहीं आपने अप्लाई करना नौकरी के लिए कि तो बेरोज़गार है तो चलो नौकरी मिले तो मैं कमीशन अप्लाई कर, नहीं। बल्कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी फ़ौज होनी चाहिए हर टाइम। हर टाइम हमतन जोश, हमतन फरोश, और हर वक्त तैयार रहना है इस मुल्क की हिफाजत के लिए। तो किस तरीके से मैं आर्मी में जाऊँ। शहादत तो है ही है ना, शहादत तो हमारा मकसद है। लेकिन शहादत के अलावा जो मेन मकसद है वो ये मुल्क की तरक्की के लिए हमने करना है, सोचना है कि मुल्क कैसे तरक्की, मेरा क्या रोल है, मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए मेहनत करनी है आपने सही तरीके से अपने आप को, बिल्कुल आप एक दफ़ा निचोड़ दें। बात है ये समझ, जिस्मानी लिहाज से अपने आप बिल्कुल जूस निकाल दो, अपना पसीना बहा दो सुबह शाम। इतने टफ हो जाओ कि आप कंपटीशन कर ही ना सके। PMA में माइल टाइमिंग क्या 6 मिनट में पास होते हैं, आप 5 मिनट में पास करो। ये ना सोचो कि 8 मिनट पास करने वाले मैं 8 मिनट करूंगा तो मैंने टेस्ट पास करना। आप इतना आगे जाओ, लोग देखें यार इसने एक राउंड किया, बच्चे पहला करें, दूसरा करें, कंप्लीट भी कर लिया इसने। उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है शदीद किस्म की। जब नॉलेज में पर ये दांत नहीं निकालने आपने, जैसे निकाल नहीं आता तो गलत कौमी तरह नहीं आता। जो क्वेश्चन पूरे टक से जवाब, तैयारी ऐसी होनी चाहिए आपकी। यस सर। प्रिपरेशन आप ऐसी करो
और टीचर का रोल सिर्फ 20% है, 80% आप लोगों ने खुद करनी है मेहनत। हमें तो पुश करना होता है, टीचर ने पुश करना है, बाकी 80% तो आपकी अपनी मेहनत है बच्चे। नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। वो लैला मजनू के किस्से तो नहीं सुनाता, मैं फैक्ट बताता हूँ। जो बच्चा मेहनत करेगा वो पास होगा, जो नहीं करेगा फेल हो जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है, लास्ट बटन आप क्लिक करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। भाई फेल होने का मतलब यह है कि आप 6 महीने पीछे चले गए। एक दोस्त अगर 6 महीने आगे चला गया, पहले सेलेक्ट हो गया, चला गया 6 महीने, वो आपसे सीनियर है, एक और सीनियर हो गए। तो अप्लाई करें, उस टाइम तक अप्लाई मत करो जब तक आपकी तैयारी नहीं है। जीके भी बढ़ाएं, फिजिकल फिटनेस भी आप करें, इंटरव्यू की तैयारी भी करके जाओ, अपीयरेंस भी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, उस बच्चा आया था ना, कैसा अपीयरेंस थी बच्चे की, दरवाज़ा कैसे दस्तक दे रहा था, मैं तो नहीं से उसको बताया कैसे करना है। एक ग्रूमिंग वैसे होती है, घर की तरफ से भी होती है ग्रूमिंग। तो ये चीज़ें सीखें, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, बातचीत कैसे करें, सॉरी कैसे करना है। तो वहाँ आपने किसी की खुशामद तो करनी नहीं है। नहीं आ तो मेहनत करें, खुदा के लिए मुझे सेलेक्ट कर लो, मैं गरीब हूँ, ये मिन्नत तरले तो आनी है। वहाँ तो उसी को सेलेक्ट करेंगे जिसको कुछ आता होगा। ज़ाहिर पाकिस्तान आर्मी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो किसी का हक तो वो नहीं करते ना, जो हकदार उसको हक मिल जाता है। तो किस्मत खुद बनानी है, नहीं करेंगे तो फिर गलती अपनी है। जिस तरह ब्रिगेड साहब ने कहा था, आप कौन साथ थे, आप थे नहीं थे, बच्चे ले गए थे मैं ब्रिगेड जफ़र के पास। सर ने क्या कहा था, बच्चों को कर रहे थे कि देखो आर्मी में आपके 3 चांस हैं, BS के बाद भी एक चांस होते हैं, इस तरह CSS के 2-3 चांस हैं, फिर PCS के 2-3 चांस हैं, 8-9 दफ़ा कमीशन के लिए चांस मिल रहे हैं आपको। फिर भी एक बंदा नहीं सेलेक्ट हो रहा, कहीं भी नहीं एडजस्ट हो रहा, उसका कमी है ना अपने में, कहीं नहीं कमी उसकी अपनी है। वो सिर्फ डिग्री होल्डर है, नॉलेज है उसको नहीं, उसका डिग्री होल्डर नहीं बनना, बल्कि अपने अंदर काबिलियत भी पैदा करनी है, मेहनत करनी है। तो आज के बाद पक्का एक इरादा बनाए मुसम्मम। और फिर बच्चे प्रोटोकॉल के चक्कर में बड़े होते हैं ना, प्रोटोकॉल तलाश करते हैं। प्रोटोकॉल को छोड़ दो यार, हम प्रोटोकॉल को छोड़ दो कि प्लाजा बड़ा अच्छा होगा, बड़ी VIP एकेडमी होगी, सोफे लगे होंगे तो हम पढ़ेंगे, अफसर बने। आपने एकेडमी की बिल्डिंग देखनी है या आपने ये देखनी तैयारी कैसे हो रही है? तो अपने आप को खाक में मिलाना है। खाक में मिल के अपने गुलो गुलजार होता है बंदा ना, दाना खाक मिल के गुलो गुलजार होता है। खाक में मिल के आपने, अभी आप क्या समझे मिलिट्री का में सख्ती नहीं होती, या PM में जो बंदा जाता है कैसे होता है, खाक मिलाते हैं कि नहीं सर, खाक में खाक दर खाक कर देते हैं, तब वहाँ जैसे बच्चा निकलता है अफसर बनते हैं। तो इसलिए खाक में मिलाओ, अपनी सोच को बदलो और मेहनत करें। आज के बाद मेहनत करोगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात आपको रिवार्ड देगी। अल्लाह तो उसको भी दे रहा है जो अल्लाह को मानता भी नहीं है। अल्लाह किसी का हक नहीं रखता। तो हम तो अल्लाह का करम है, मुसलमान है, दीन इस्लाम को मानने वाले हैं। अल्लाह ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किए, हमारे ईमान कुछ और है। तो हम ईमानदार लोग हैं, ईमान भी रखते हैं, और फिर सही मेहनत भी करेंगे खुलूस के साथ, तो अल्लाह ताला करम फरमाते हैं। कितने बच्चे चले गए, सिलेक्ट हो गए। Yes, sir. तो इसलिए आप मेहनत करो और एक टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल में तो चलें। कैपिटल्स इंशाल्लाह जब नेक्स्ट होगी ना, इंशाल्लाह कैपिटल्स मैं पूछूंगा। आज जाके सिर्फ कैपिटल्स करें, जितने दुनिया के कैपिटल्स हैं वो याद करें। कैपिटल्स, वर्ड कैपिटल्स की वीडियो बनी हुई है, इधर से नहीं देखते, कहीं और से देख लो, गूगल पे देख लो, बुक्स मिलती हैं, हु इज़ हु एक किताब मिलती है, वो ले लो, उसमें सारे कैपिटल्स लिखे हुए हैं। हु इज़ हु किताब अच्छी किताब है, उसमें बड़े अच्छे उन्होंने रिसेंट लिए हैं वो किताब, नोट्स के अलावा, तो उसमें पूरे कैपिटल्स दिए हैं उन्होंने। तो कल पूछे तुर्की कैपिटल ने फ़ौरन जवाब दें, ईरान का फ़ौरन, ओमान का क्या फ़ौरन आंसर आना चाहिए। सर की बात है कि बार बार सॉरी करेंगे तो लास्ट में वो क्या कहेंगे, सॉरी सर, वो आपको भी सॉरी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मेहनत करेंगे। लास्ट दिनों में नहीं करनी, अभी से मेहनत करनी। रमज़ान शरीफ आ रहा है, अभी से टाइम टेबल बनाएं, रोज़े भी रखने आपने और मेहनत भी करनी है। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। इमरान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह मुझे आपके नोटिफिकेशन के जरिए मिल गए। इंशाल्लाह मैं अच्छी तैयारी करूँगा। दुआ में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।